کتاب کے اندر ہے اس کا آج اجرا ہو رہا ہے. اس کتاب کو آپ حرفاً حرفاً پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے فائدہ بخش کتاب ثابت ہوگی. اس کتاب کا آج اجرا ہو رہا ہے. ہمارے صحافی صاحب جرنلسٹ یہ بشارت کریم صاحب اس کی تصویر کشی کریں گے اور خبر جو ہے وہ شائع کریں گے. سکول میں اور سکول میں جہاں موجود ہے یہ شرجن پور کا ایریا ہے. کہا جائے تو جس میں ہم موجود ہیں میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا ایک بار جو ہے وہاں سے لے کر کے یہاں تک لوگوں کا نظارہ دکھایا جائے. یہ جو ہے جس ادارے میں ہم موجود ہے، جس انسٹیٹیوٹ میں ہم موجود ہے، اس کا نام جو ہے ابو عبیدہ بن الجراح ہے. اور دیکھیے ایک بک دیکھ رہے ہیں آپ میرے ساتھ، یہ میگزین جو ہے اس کا نام ہے ذیلی جماعت اہل حدیث سپول بہار کی 13ویں کانفرنس کا خصوصی شمارہ بعنوان پیام امن. تو پوری دنیا میں انسانیت کا پیغام دینے کے لیے، امن کا پیغام دینے کے لیے ایک ایسے دور میں یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جبکہ پورے ہندوستان میں چاروں طرف سے نفرت کی لہر دوڑ رہی ہے اور ہر دن آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا شخص سامنے آ جاتا ہے جو کہ زہر پھیلا کر کے پورے سماج کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی کی وجہ سے آج میوات کے اندر، ہریانہ کے اندر کچھ لوگوں نے دنگے بڑھوائے لیکن 700 سمودائے وشیش کے گھر توڑ دیے گئے. تو یہ ایک نفرت کا حال ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم دکھانا چاہیں گے آپ کو، یہ دیکھیے یہ جو ہے ضلع جماعت اہل حدیث سپول بہار کا ایک روزہ اجلاس عام رد فتنہ شکیلیت و اجراء مجلہ جمعیت صدارت جناب مولانا اکرام الحق صاحب مفتاحی. تو یہ ایک کبھی کبھی دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ ہمارے اس دور میں ابھی ہم ان لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے، بڑے عالم دین ہیں، ان لوگوں سے ہم بتائیں گے کہ آخر کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن کبھی کبھی اس دور میں ایسے فتنے آ جاتے ہیں جو صحیح عقیدے والے لوگوں کی ایمان کو خراب کر کے کبھی پیسوں کی لالچ میں تو کبھی دولت کی لالچ میں ان کو صحیح مسلمان کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں. مولانا منصور صاحب ہے نا، مولانا منصور صاحب ہے، لیکن ہمارے درمیان سب سے بڑی شخصیت کا آدھا ہے مولانا مدنی صاحب موجود ہے. ہم اس سے بعد میں جانیں گے. ہم جاننا چاہیں گے آپ کو جو پروگرام آپ لوگوں نے کیا ہے اور یہ جو میگزین ہے اس کا جو مشن ہے، جو ویژن ہے وہ بتائیے آپ. سب سے پہلے ذیلی جماعت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے 2022 میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی تھی پیام امن موضوع کے تحت. اس میں ہم نے پورے ہندوستان واسیوں کو امن کا پیغام دیا تھا اور الحمدللہ ہم لوگ امن پسند انسان ہیں اور امن بھی ہم لوگ چاہتے ہیں. وہ پروگرام بھی ہمارا کامیاب ہوا تھا اور اس پروگرام میں جتنی بھی باتیں آئی تھیں اور مارکت الآراء مضامین آئے تھے علماء کرام کے ذریعے، ان تمام مضامین کو ہمارے ذیلی جمعیت اہل حدیث سکول کے ذمہ داران نے کتابی شکل دے دی اور اس کو چھاپ دیا، جو ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند اور سیکھنے ثابت ہوگی. اور جو باقی فکر اور تحریکات ہمارے درمیان جنگ ہوئے ہیں، اس پتہ کے ذریعے سے بھی ہمیں تعاون ملے گا ان کی تحقیق میں اور ان کو سمجھانے میں اور صحیح اسلام کی طرف ان کو راغب کرنے میں. مولانا صاحب جاننا چاہیں گے آپ کی لکھا ہے آپ نے رد فتنہ شکیلیت ایک ایسے دور میں جبکہ ہر طرف عالم ربانی بڑے بڑے علماء دین موجود ہیں اور تمام قرآن و حدیث کے جو تشریحات ہیں وہ موجود ہیں، اس کے باوجود اس طرح کا فتنہ اٹھنا یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے. یہ علماء کرام کی کمی ہے کہ ہم 100% بچوں کو دینی مدارس سے نہیں جوڑ پاتے اور نہیں جوڑ پانے کے سبب جو اسکول اور کالج وغیرہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، تو دین سے وہ دین کی بات ان کے پاس نہیں ہوتے، قرآن و سنت کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا. اور ایسے ہی لوگوں پر، ایسے ہی بچوں پر اس طرح کے فکری لوگ ماری کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ ان کو جو ہے گمراہی کی طرف لے جا. آپ کا یہ آج کا کانفرنس رد فتنہ شکیلیت کا جو ہے کتنا اثر ہوگا آپ کے اس علاقے میں اور سکول میں، سکول کے بعد؟ انشاءاللہ بہت اچھا اثر ہوگا.
बहुत सारे एक ही जगह से काम कराना क्योंकि इस इलाके में एक नौजवान इस तरह का हमें मिला है जी, एक नौजवान हमें मिला है, इसलिए हमारे सारे उलमाए किराम सरगर्म हो चुके हैं और मैदान में उतर चुके हैं ताकि इस मुद्दे की सरकों औरत की जा सके और आगे ये फितना ना बढ़े और इस तरह के प्रोग्राम हमारे होते रहकर मुख्तलिफ इससे पहले भी मुर्तद हो रहे थे, नबूवत का दावा किया था, हज़रत अबू बकर के ज़माने में मुर्तद हुए थे, आज भी हो रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, उस मिशन से हमें घबराना नहीं है, बल्कि हम अपनी मिशन जारी रखेंगे और सही इस्लाम की तरफ उनको लाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे साथ जो है मौलाना इकराम हक साहब कौन है, आप हैं। देखिए ये जो है इस पूरे प्रोग्राम अमीर साहब ने जिले जमियत के पूरे सुपौल के, हाँ तो पूरे सुपौल के ज़िले जमियत के अमीर हैं और इन्हीं की रहनुमाई में सदारत में आज का ये प्रोग्राम हो रहा है। हज़रत हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो जितना हमारे वजूद में आ रहा है इसको इसकी एक मतलब कहा जाए तो कलाकमा करने की एक शुरुआत है आपकी तरफ से, ये शुरुआत यहीं तक थमेगा या आगे नहीं जाएगा? आगे तक हम ले जाएंगे। हाँ और इसमें जो है ये कितना है हमारे यहाँ जो स्कूल के पढ़े लिखे जो मदरसा से कोई इसका लगाव नहीं था, वो तो तालीम नहीं हुई और इस वजह से वैसा हो गया। हम इसलिए जो है ये प्रोग्राम करके अवाम नास में और क्या है कि स्कूल के बच्चे उसमें भी ये पैगाम देते हैं कि ये जो है वो पैगाम वहाँ तक पहुँचे और सब जाने के लिए ये करना है। और ये जो हम ये क्या करेगा काफी हो जाएगा ना। तो ऐसे जमाने में इस तरह के लोग में आ रहे हैं जब जहाँ तरफ आगे है तो ये जमाना जिससे पहले में था और कुछ पैसे के लालच पैसों की लालच से लोग का मतलब सुबह मुसलमान रहेगा शाम में काम हो जाएगा। अल्लाह के नबी की जो हदीस है हाँ कौन सा बोला जाए? हाँ मैं जिले जमियत अहले हदीस सुपौल का नाज़िर मोहम्मद दाऊद इस्लामी। जब ये हमारे इलाके में जिस लड़के ने इस तरह शकीलियत इख्तियार किया और हमारे सामने बात आई, ये भी बात आई कि 2, 4, 10 लड़के को भी वो वर्गला रहे हैं, तो ये सुनने के बाद इस अहले हदीस इलाके में पैसों की लालच में वर्गला है। तो इस तरह से यहूदी मिशनरी या ईसाई मिशनरियों के दाम में फंस करके हो सकता है ये लड़का उलमा से दूर रहा है, दीनी तालीम से दूर रहा है, इस्लामी अकीदा इसके पास नहीं था, इसलिए वो उनके बहकावे में आ गए और पैसे के लालच में आकर के वो उस तरफ झुलक गए हैं। मैं उलमा किराम की इस टीम को लेकर के जमियत अहले हदीस के प्लेटफार्म से चाहता हूँ कि मुख्तलिफ जगहों में इसका प्रोग्राम करके अवाम उन्नास को इसकी तरफ जानकारी दें और सही अकीदे से हमको बेदार शनाख्त। देखिए हम चाहेंगे कि हज़रत मौलाना जो है सभी लोगों को समेट है कि जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को कराने में मदद की है, ताउन किया है और जिस मिशन के लिए प्रोग्राम हो रहा है। बड़ी शख्सियत है मौलाना मदरी साहब, इनके इदारे भी चलते हैं। कुछ दिन पहले सुपौल टाइम्स पे आप लोगों ने देखा भी था। हज़रत कैसे इस फितना से बचा जाए? सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग उलमा इकराम भूल भुलैया में थे। जैसे आपने कहा कि यहाँ मदारिस हैं, उलमा हैं, सही बात है, मदारिस हैं, उलमा हैं और मेहनत भी है, लेकिन इतना हम लोग सोच नहीं पाए थे कि कोई इसी माहौल से, इसी समाज से कोई निकलेगा और इस तरह की हरकत करेंगे। ये जो शकीलियत है आप लोग जानते होंगे, ये एक आदमी था शकील बिन हनीफ की दरभंगा का रहने वाला, उसने एक सूसा छोड़ा और गलत बातें, जो इस्लाम विरोधी बातें, जो कुरान के ख़िलाफ़ वाज़ेह कुरान की जो आयत है और हदीस है उसके ख़िलाफ़, बल्कि मुतवातिर हदीस के ख़िलाफ़ उन्होंने कुछ बातें की और उसमें बहुत कम एक के बारे में हम लोगों को मालूम हुआ और सही माने में वो इसमें शामिल है, लेकिन यह है कि उसके घर वाले और इलाके के लोगों के कहने पर अभी थोड़ा शर्त पड़ा हुआ है और दुआ भी करते हैं कि उसको अल्लाह ताला उसको समझ अता फरमाए। तो ये है कि कमी है, ये नहीं है कि मदारिस में वो नहीं लिया, इसलिए कमी है हमारी और ये थोड़ा सा दूर रहा, इलाके से भी दूर रहा और चुपके इसने ऐसा किया है। और ये बात सुनने में आ रही है कि माल और की वजह से भी, पैसे की लालच में भी ऐसा किया है। तो वो जो शकीलियत है, फितने शकीलियत, अल्हम्दुलिल्लाह ये आगे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाया,
जहाँ भी गया और उसकी जो बातें हैं, जो उसके अकायद हैं, इसको एक आम आदमी भी समझ लेता है कि गलत इंसान, यानी अपनी दुनिया के लिए, और एक शीशा उसने छोड़ा और तमाम लोगों ने इसको नकारा है। आज बहुत ही मामूली किस्म के लोग हैं जो उसका साथ देते होंगे, और वो भी बहुत आम नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ के उलमा को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, ख़ास करके जमीयत अहले हदीस सुपौल के जो ज़िम्मेदारान हैं, मौलाना इकराम हक साहब सदर हैं, मौलाना दाऊद साहब, मौलाना मंसूर साहब, और इस तरह के बहुत उलमा इकराम को जब भी मालूम हुआ, उसमें मैं भी आया था, उनको समझाया गया। लेकिन मुश्किल ये है कि वो उलमा के साथ सामने बोलना नहीं चाहते। घर वाले, उसके जो घर वाले हैं बहुत अच्छे हैं, उन्होंने उलमा इकराम को बताया कि इसको देख रहे हैं कि ये बहक रहा है, और हम लोग भी आए थे, और वो यही है कि वो बोलना नहीं चाहता कि मैं उलमा के साथ नहीं जाऊँगा। और फितने शकीलियत की जो अहम बुनियादी चीज़ है वो यही है कि वो अपने मानने वालों को कहते हैं कि उलमा के पास नहीं जाए, वो ये वाश कर देता हूँ। हाँ, यही कहता है उसके करीब तुमको नहीं जाना है, और कोई इल्म भी नहीं उसके पास। बात यह है कि उसको पैसे दे करके, और चूंकि वो जाहिल होते हैं, कुरान और हदीस से दूर होते हैं, इसलिए उसको किसी तरह समझा दिया जाता है। लेकिन मेन मुद्दा यही है कि हम लोगों ने सोच नहीं पाया था कि हमारे इस इलाके से, इस लहलहाते हुए इलाके से, जहाँ उलमा इकराम की बड़ी टीम है, मदारिस हैं, यहाँ से, और वो घराना भी अच्छा है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हो गया क़द्दरल्लाहु मा शाअ फ़अल। लेकिन ये है कि मुझे यकीन है अब इस प्रोग्राम से रुकेगा ये फितना, इंशाअल्लाह रुकेगा। इलाके में लोगों को मालूम हुआ, आप बेदारी पैदा करेंगे लोगों में, लोग कर रहे हैं, हमारी जमीयत कर रही है, हम लोग भी साथ दे रहे हैं। अभी कम पैमाने पे हुआ, इंशाअल्लाह पूरे इलाके पैमाने पे करेंगे। और इंशाअल्लाह ये है कि आज के दौर में जब हमने ताज़ियात आ रही, मुहर्रम हमारे इस्लाम में चीज़ों का नाम निशान नहीं है, ये चीज़ें भी तो हो रही, मुहर्रम भी तो बहुत, मतलब कि क्या कितना बड़ा ये एक तरीके से बिदात है। आप भी इस इलाके के हैं, जानते होंगे कि पहले किस तरह मुहर्रम मनाया जाता था, आज इस इलाके में नहीं मनाया जाता। मैं बाबुआन का रहने वाला हूँ, मैंने इस मरतबा देखा बाबुआन के कुछ लोगों ने मनाया, लेकिन ये वो लोग हैं जिनका दिमाग थोड़ा कम है, पागल हैं, गरीब हैं, बस वो कुछ समझते नहीं हैं। उन्हीं लोगों को, 2-4 लोगों को मैं देखा, ढोल ताशे बजवा करके इस्लाम को बदनाम। बाकी जो अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे किसी भी मसलक के हों, अहले हदीस हों, देवबंदी हों, कोई भी हों, अच्छे लोग उसमें आज भी नहीं हैं। और आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कम हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि जब इन चीज़ों का, मुहर्रम का, ताज़ियादारी का, जुलूस का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो लोग उसको छोड़ रहे हैं। अब मुझे यकीन है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग इसको भी, इस गलत चीज़ों को, रस्म व रवाज को लोग, जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को करवाया उसके बारे में ये हमारे जमीयत अहले हदीस, जमीयत अहले हदीस के ज़िम्मेदारान हैं। इसमें पेश हैं हमारे मौलाना इकराम हक साहब, मौलाना दाऊद इस्लामी साहब, मौलाना जहाँ जिनके यहाँ ये प्रोग्राम हो रहा, मौलाना सैफुद्दीन नबी साहब, वही इस इदारे का देख रेख कर रहे हैं। तो इन तमाम लोगों की मेहनत, बल्कि तमाम मौलाना काबत और जितने लोग हैं, हम लोग तो बस वो दावत देते हैं, हम लोग आ जाते हैं। इन लोगों की मेहनत है, कोशिश है, और मैं देखता हूँ कि जब भी ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ की, तो ये लोग हाजिर होते हैं, चाहे रात में हो, चाहे दिन में हो, सुबह हो, अपना आराम वगैरह छोड़ करके ये लोग लगे हुए हैं। हकीकत में ज़िली जमीयत अहले हदीस का जो अहम अहदाफ और मकासद हैं, उसको ये लोग पूरा कर रहे हैं। और गुज़श्ता साल कई प्रोग्राम इन्होंने किया, और फिर मैं यही कहूँगा कि इस तरह के अच्छे अच्छे प्रोग्राम कम पैसे में, कम खर्च में करें, लोगों को बुलाएं, और अच्छे अच्छे अनावीन पर